معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 55,03,46,000 افراد ہلاک۔ WHO نے کرونا وائرس کے مریضوں پر ہائیڈروکسی کلوروکوئین ٹیسٹ پر عائد کی پابندی۔ برطانیہ میں 1 جون سے مارکیٹیں اور شو رومز کھولنے کی اجازت۔ کرونا وائرس کا قہر، امریکہ میں 98,000 افراد ہلاک۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ دبئی کے ولی عہد نے 27 مئی سے تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ کے علاوہ پورے سعودی عرب میں کرفیو کے اوقات میں نرمی کا اعلان۔ مملکت کویت میں وزراء کونسل کے اجلاس کے آج کے اہم نکات۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 6,535 نئے معاملے، متاثرین کی مجموعی تعداد 1,45,000۔ تغلق آباد جھگی بستیوں میں خوفناک آتش زدی۔ ملک گیر لاک ڈاؤن ناکام، اعتراف کریں وزیر اعظم مودی، راہل گاندھی۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ریاست کی ترقی، کسانوں کی ترقی میں مضمر، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی۔ اسپیشل انفورسمنٹ بیورو کے ایڈیشنل ایس پی کے چکراورتی کی قیادت میں ضلع بھر میں غیر قانونی شراب کی تیاری۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 55,03,46,000 افراد ہلاک۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کا قہر دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کے متاثرین کی تعداد 55 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے، جبکہ 3,46,000 سے زائد افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں متاثرین کی مجموعی تعداد 54,95,061، جبکہ 3,46,229 افراد کی اس وبا سے موت ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ متاثر ممالک میں پہلے مقام پر امریکہ کے بعد اب برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ روس تیسرے نمبر پر ہے۔ ہندوستان میں بھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ WHO نے کرونا وائرس کے مریضوں پر ہائیڈروکسی کلوروکوئین ٹیسٹ پر عائد کی پابندی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کرونا وائرس کے مریضوں پر ہائیڈروکسی کلوروکوئین ادویے کے تجربے پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس نے پیر کو بتایا کہ تنظیم کے زیر انتظام 17 ممالک کے 400 اسپتالوں میں کووڈ-19 کے مریضوں پر شروع کیے گئے سالیڈریٹی ٹرائل کے ایگزیکٹو گروپ کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ برطانیہ میں 1 جون سے مارکیٹیں اور شو رومز کھولنے کی اجازت۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ حکومت 1 جون سے بیرونی منڈیوں اور کار شو رومز کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں دکانوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے نوٹس دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی تیار ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 15 جون سے ہم دیگر تمام غیر ضروری خوردہ فروشوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ اجازت صرف کووڈ-19 سے محفوظ احاطے میں ہوگی۔ کرونا وائرس کا قہر، امریکہ میں 98,000 افراد ہلاک۔ عالمی وبا کورونا وائرس سے سب سے بری طرح متاثر امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 20,600 سے زیادہ معاملوں کی تصدیق اور اب تک ملک میں تقریباً 98,000 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 822 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کورونا کے شکار افراد کی مجموعی گنتی 30,307 تک جا پہنچی ہے۔ گلف نیوز کے مطابق اماراتی وزارت صحت کی جانب سے گزشتہ روز دی گئی میڈیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ کورونا کے مزید 3 افراد چل بسے ہیں، جس کے بعد اس موذی مرض کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی گنتی 248 ہو گئی ہے، جبکہ ایک ہی روز میں 601 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔
दुबई के वली अहद ने 27 मई से तिजारती सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया। तिजारती इदारे रोजाना सुबह 6 से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। लोगों को समाजी फासले के साथ आजादाना नकल व हरकत की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स सेंटर्स, जिम्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोले जा रहे हैं। दुबई में कल यानी बुध के रोज से मुतअद्दिद इख्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। गल्फ न्यूज के मुताबिक दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि दुबई के फरमा रवा और अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कुदरती आफात और बहरानों से मुतालिक कमेटी के इजलास के दौरान रियासत भर में इख्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया है। मक्का मुकर्रमा के अलावा पूरे सऊदी अरब में कर्फ्यू के औकात में नरमी का ऐलान। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद जुमा और पंजगाना बाजमात नमाजों के लिए 31 मई से खुल जाएंगी। मस्जिदुल हराम में जुमा और बाजमात नमाजें एहतियाती तदाबीर के साथ जारी रहेंगी। सऊदी अरब के वजारत दाखिला के जिम्मेदार ज़राए ने एक बयान में बताया है कि ममलिकत में सेहत के शोबे से मुतालिक हुक्काम की सिफारिशात की बुनियाद पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात में नरमी की गई है। इसमें कर्फ्यू के औकात में जुज़वी तब्दीली के अलावा एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात के साथ बाद सरगर्मियों का दोबारा आगाज शामिल है। ममलिकत कुवैत में वज़रा कौंसिल के इजलास के आज के अहम नुकात। रोजनामा अल अंबा की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम शोबों मसलन कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानों में कारोबार के आगाज से कबल मंसूबों और तरीक़ेकार पर तबादुल ख्याल का सिलसिला जारी है। वजारती ज़राए ने अल अंबा को बताया कि मुलाजिमीन की मुलाजिमतों पर बतदरीज वापसी और खिदमत के लिए वेबसाइटों पर इन्हिसार के बारे में पिछली मालूमात के अलावा वज़रा की काउंसिल मंदरज झेल इक़दामात पर गौर कर रही है। पहला तरीका शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक या शाम 9 बजे से सुबह 4 बजे तक जुज़वी पाबंदी का इतलाक करना। दूसरा तरीका अगले इतवार से कोऑपरेटिव सोसाइटियों और उसकी तमाम शाखों में काम का आगाज, लेकिन मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल और वजारत सेहत की हिदायत की सख्ती से पाबंदी करना। तीसरा तरीका वजारत सेहत की तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल करते हुए तिजारती कारोबार का आगाज करना। चौथा तरीका कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में कारोबार का आगाज किया जाएगा, ताहम 1000 मुरब्बा मीटर सिर्फ 50 अफराद के लिए मुख्तस किया जाएगा और इहाते में मौजूद हर फर्द को सिर्फ 2 घंटे खरीदारी के लिए दिए जाएंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6535 नए मामले, मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,45,000। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की संगीनी में इजाफा होता ही जा रहा है और अब ये दुनिया भर में इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा केसेस वाले ममालिक में 10वें नंबर पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के केसेस में अगरचे जुज़वी कमी आई है, जबकि इसी मुद्दत में 2770 लोग ठीक हुए हैं, जिससे इस बीमारी से नजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 60,000 से जायद हो गई। इस दरमियान महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 52,000 से जायद हो गई। तुगलकाबाद झुगी बस्तियों में खौफनाक आतिशज़दी। जुनूबी दिल्ली के तुगलकाबाद की झुगी बस्तियों में आज 1 बजे के करीब शदीद आग लग गई। कुछ ही देर में इस आग ने 300 के करीब झुग्गियां को अपने चपेट में ले लिया। ये इत्तला महकमा फायर ब्रिगेड ने दी। फायर ब्रिगेड महकमे के एक ऑफिसर ने बताया कि महकमे को सबसे पहले आज 12:55 पर आग लगने की इत्तला मिली, जिसके बाद 30 फायर ब्रिगेड के अहलकारों को जाए वकूअ पर भेजा गया और आग पर लगभग 3 बजे काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग की वजह से अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मुल्कगीर लॉकडाउन नाकाम, एतराफ करें वजीर आजम मोदी। राहुल गांधी। हिंदुस्तान में कोरोना बहरान के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 माह तवील कौमी लॉकडाउन जो 25 मार्च को कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया था, अपने मकासद में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान इस वक्त लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला कर रहा है जब वायरस तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि 21 दिन में हम इस वबा पर काबू पा लेंगे, लेकिन 4 मरतबा लॉकडाउन नाफिज करने और 60 दिन के बाद भी कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका।
ये कदम नाकाम रहा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस के 48 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। अब ये तादाद बढ़कर 2719 हो चुकी है। ताहाल मरने वालों की तादाद बढ़कर 57 हो गई है। आज 55 मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो गए, जिससे अब तक मुकम्मल सेहतयाब होने वालों की तादाद 1903 हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मजीद चंद चीजों में छूट देने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं, जिसके तहत रियासत भर में कपड़े, चप्पल, जेवरात की दुकानों को खुला रखने की इजाजत दी गई। साथ ही स्ट्रीट फूड की फरोख्त की भी इजाजत दी गई। ताहम पानी पूरी की फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी। बड़े शॉपिंग मॉल्स को जाने से पहले ऑनलाइन में मंजूरी लेना जरूरी होगा। सड़कों पर खाने की अशिया का कारोबार करने वालों को पार्सल देना होगा। सड़क पर खड़े होकर खाने की इजाजत नहीं होगी। कारोबार करने वालों को दस्ताने पहनना जरूरी होगा। रियासत की तरक्की, किसानों की तरक्की में मुजमर वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जगन मोहन रेड्डी ने आज अपने कैंप ऑफिस से रियासत भर के कलेक्टरों और रियासती वज़रा के साथ बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमने इख्तिदार के 1 साल में किसानों की खुशहाली के लिए ठोस इक़दाम किए हैं, क्योंकि हमारा ऐकान है कि रियासत की तरक्की किसानों की खुशहाली पर मुनहसिर है। हमारी हुकूमत किसानों को खुशहाल देखना चाहती है। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने इख्तिदार के 1 साल की तकमील पर मना पालना मी स्वच्छना नाम पर प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसके तहत हर दिन अपने कैंप ऑफिस से अजला के कलेक्टर और रियासती वज़रा से रास्त इजलास मुनक्किद करके जरूरी हिदायत जारी कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 3648 किलोमीटर तवील रियासत में पादयात्रा के मौके पर रियासत के किसानों की तकालीफ का जायजा लिया था। उनसे चंद वादे किए थे, जिसे इंतखाबी मंशूर में भी रखा गया। बरसरे इख्तिदार आने पर तमाम वादों को पूरा किया गया। किसानों के फसलों को खातिर ख्वाह कीमत खरीद मिलने पर ही ज़राई शोबे को फायदा होता है। किसानों को उनकी फसलों के लिए हुकूमत ने रैतु भरोसा और पीएम किसान प्रोग्राम के जरिए से 13,500 रुपये दिए जा रहे हैं। पहले साल के दौरान ही हमने किसानों को 10,209 करोड़ रुपए की रकम इमदाद दी है। किसानों की फसलों के लिए हुकूमत की जानिब से बीमा कराया जा रहा है। किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल्स भी डाले जा रहे हैं। हर साल किसानों की बहबूद पर हुकूमत 8,800 करोड़ खर्च करती है। ये हुकूमत किसानों की ताईद की हुकूमत है। स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के एडिशनल एसपी के चक्रावर्ती की क़ियादत में जिला भर में गैर कानूनी शराब की तैयारी। गैर कानूनी शराब की तरसील और गैर कानूनी रेत की तरसील के खिलाफ धावन का सिलसिला जारी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा में जब से स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के एडिशनल एसपी के चक्रावर्ती ने ओहदा संभाला है, जिला भर में गैर कानूनी शराब की तैयारी, गैर कानूनी शराब की तरसील, गैर कानूनी रेत की तरसील के खिलाफ बड़े पैमाने पर धावन का सिलसिला जारी है। जिला भर में ताहाल 2000 लीटर शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया को जब्त करके तबाह किया गया। 77 लीटर तैयार करदा शराब का जखीरा, 45 लीटर गैर कानूनी शराब का जखीरा जब्त करके इस सिलसिले में 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रेत की गैर कानूनी तौर पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके 700 टन रेत गैर कानूनी तौर से ले जा रहे रेत में मुलव्विस एक 3 टिप्पर, जेसीबी और 17 ट्रैक्टर्स, एक ऑटो, 20 बैलगाड़ियां जब्त करके 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल एसपी के चक्रावर्ती ने अवाम से किसी भी गैर कानूनी शराब या रेत की तरसील की इत्तला मिलने पर 912111006663 को फोन पर इत्तला देने की अपील की है। इत्तला देने वालों के नामों को जाहिर नहीं किया जाएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।